Good morning, students. So today's topic is posterior triangle of neck, and I will conclude posterior triangle of neck in this video lecture only. So let's begin with it. Before starting posterior triangle of neck, we have to discuss about deep cervical fascia. The deep cervical fascia is very important. As we proceed in this video lecture, you will come to know that this deep cervical fascia, uh, the investing layer of this deep cervical fascia will basically form the roof of this posterior triangle of the neck. So okay, so before the any structure forming the roof of this posterior triangle of neck must be known to you all, so that there will be no confusion while studying posterior triangle of neck. So before starting posterior triangle of neck, we will discuss deep cervical fascia, and we will also discuss about the sternocleidomastoid muscle, which is very important muscle, or you can say which is an important landmark between the posterior as well as the anterior triangle of the neck. So let's start with deep cervical fascia. Deep cervical fascia of neck is nothing but a fascia which is condensed form of कवरिंग्स और फेशिया, जो भी सराउंडिंग, जैसे जो हम जब आप मैंने कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ाया तो मैंने बताया ना पहले, स्किन अगर हम रूफ से चलते हैं, बाहर चलते हैं, फ्रॉम आउटवर्ड्स विद इन हम जाते हैं, सो वी विल हैव स्किन, देन वी विल हैव द सुपरफिशियल फेशिया, देन वी विल हैव द डीप फेशिया. सो आफ्टर सुपरफिशियल फेशिया, द डीप फेशिया or the deep cervical fascia is nothing but the deep fascia of the body, which is more condensed, is more condensed in form. And ये जो condensed fascia होगा, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाएगा. जैसे कि बिकॉज सर्टन स्ट्रक्चर्स विल बी इनक्लोज्ड विद इन दीज फेशिया. वैसे तो सिक्स देयर आर सिक्स different layers of this cervical fascia, deep cervical fascia, or six different regions covering this deep cervical fascia. तो 6 अलग अलग नाम से हम उनको जानेंगे. जो सबसे important है, that is the investing layer of the deep fascia. Yes, you can see this is the investing layer of deep fascia enclosing the ligamentum nuchae. Okay, so this is the investing layer of deep cervical fascia. Then we have the prevertebral layer. प्री वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. सो प्री वर्टिब्रल, बिफोर वर्टिब्री. आगे से अगर चलें फ्रॉम एंटेरो पोस्टीरियर अगर हम जाएं, तो एंटेरो पोस्टीरियरली इट इज कॉल्ड एज प्री वर्टिब्रल बिकॉज इट इज बिफोर द वर्टिब्री और इन फ्रंट ऑफ और इन एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्री वर्टिब्रल fascia. Similarly, we have the pretracheal fascia. Yes, this is the trachea, and in front of this trachea is the pretracheal fascia. Then we have the carotid sheath. यहाँ पे आपको carotid sheath नहीं labeled है. We have the carotid sheath. हम अभी डिस्कस करेंगे, carotid sheath के बारे में भी डिस्कस करेंगे before starting the posterior triangle of neck. So carotid sheath जो है वो common carotid artery और उसके साथ साथ आपका इंटरनल जूगलर एक्सटर्नल कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन साथ ही साथ इंटरनल जूगलर वेन, एंड अलॉन्ग विद इट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्लस वेगस नर्व. इनको इनक्लोज करेगा जो डीप सर्वाइकल फेशिया का लेयर, दैट विल बी कॉल्ड एज कैरोटिड शीथ. सो कैरोटिड शीथ. देन फिफ्थ इज द बक्कोफेरेंजियल फेशिया, विच इज ऑल्सो नॉट लेबल्ड हियर, बक्कोफेरेंजियल फेशिया, जो कि आपको बक्कल रीजन में देखने को मिलेगा. देन वी हैव द फेरेंगोबैसिलर फेशिया. सो आउट ऑफ ऑल दीज सिक्स, द top four will be the most important: the investing layer of the deep cervical fascia, the prevertebral fascia, the pretracheal fascia, and the carotid sheath. ओके, सो इन्वेस्टिंग लेयर जो है वो बताएं. इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया जो है वो जैसा कि सुपरफिशियल फेशिया हम अभी पढ़ेंगे. सुपरफिशियल फेशिया पहले भी डिस्कस किया, एंटर ट्रायंगल ऑफ नेक में सुपरफिशियल फेशिया जहाँ भी डिस्कस किया तो वहाँ पे आपने उसमें देखा कि सुपरफिशियल फेशिया प्लेटाइज्मा को कंटेन कर रहा था. उसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया में कुछ वेसल्स थे, प्लेटाइज्मा के साथ, प्लेटाइज्मा मसल के अलावा कुछ वेसल्स थे, कुछ नर्व्स थे, जैसे कि एक्सटर्नल जूगुलर
and posterior external jugular vein, and then parts of supraclavicular, greater auricular nerves, lesser occipital nerves. तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो सुपरफिशियल फेशिया में इनक्लोज थे. सो डीप टू दिस प्लेटाइज्मा, deep to the platysma situated within superficial fascia is the investing layer of deep cervical fascia, and it surrounds the neck like a collar. गर्दन पे एक कॉलर की तरह. कॉलर कहाँ होता है? पीछे बैक में ना. सो यू कैन सी कैसे, क्यों कह रहे हैं ऐसा? बिकॉज दिस इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया इट सराउंड्स द नेक जस्ट लाइक अ कॉलर, एंड इट फॉर्म्स बेसिकली द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक. सो अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ deep cervical fascia, then you have to write that investing layer of deep cervical fascia is a part of deep cervical fascia which encloses the neck like a collar, or which surrounds the neck like a collar, and it is situated deep to the platysma and forms the roof of the posterior triangle of the neck. I am talking about investing layer of the deep cervical fascia. Then we have the prevertebral fascia. So prevertebral fascia को कैसे डिफाइन करेंगे? prevertebral fascia देखो, it lies anteriorly to the prevertebral muscles. यहाँ vertebral column है तो उसके आगे कुछ muscles होते हैं. So this prevertebral fascia lies anterior to the prevertebral muscles and basically forms the फ्लोर ऑफ दिस पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक. जब पोस्टीरियर ट्रायंगल के फ्लोर का बात करेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे प्रीवर्टिब्रल फेशिया के बारे में पढ़ोगे. ओके, देन वी हैव द प्रीट्रेकियल फेशिया. सो द प्रीट्रेकियल फेशिया इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीट्रेकियल फेशिया में ये देखो आपको स्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड यहाँ पे लेबल दिख रहा है. थायराइड ग्लैंड जो है वो इनक्लोज्ड है. सो दिस फेशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इनक्लोजेज the thyroid gland, or thyroid gland is suspended within this fascia and it forms the false capsule of this thyroid gland. जब thyroid gland हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि false capsule फॉर्म करता है thyroid gland का, this pretracheal fascia. So it is very important. That is why it is very important. So you must remember these 3 parts of deep cervical fascia: the investing layer, the prevertebral layer, the pretracheal layer, and the carotid sheath, which will be discussed in further upcoming slides. So again we will see a transverse section of this deep cervical fascia. So you can see transverse section में देखो ये पूरा एक राउंड जो बाहर से दिख रहा है ये लेबल्ड है इन्वेस्टिंग लेयर. सो नेक पे पूरा कॉलर की तरह एनसर्कल्ड है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया. यस, अब समझ में आ रहा है क्यों बोला कि इट इनक्लोजेस द नेक एज अ कॉलर. सो दिस आउटर मोस्ट इज द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया. देन talking about the pretracheal, so you can see this is the thyroid gland, this purple one, and this is the pretracheal fascia. Yes, this is the pretracheal fascia. अच्छा, अटैचमेंट का बात करें pretracheal fascia का, then it will be attached superiorly to the hyoid bone. मीडियन प्लेन पे हायोइड बोन पे सुपीरियरली तो हायोइड बोन से अटैच्ड होगा. उसके साथ साथ थायराइड कार्टिलेज, जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें थायराइड कार्टिलेज पढ़ेंगे. वहाँ पे उस थायराइड कार्टिलेज में यू विल ऑब्जर्व एन ऑब्लिक लाइन. सो इट विल this pretracheal fascia is also attached to this oblique line of the thyroid cartilage. And cricoid cartilage, one more cartilage we will study in larynx, that is the cricoid cartilage. larynx में पढ़ेंगे cricoid cartilage के बारे में. तो cricoid cartilage पे भी attachment है. तो superiorly this pretracheal layer will be attached to these structures, whereas inferiorly below the thyroid gland ये जो structures है ये basically जो भी वेसल्स हैं, इंफीरियर थायराइड वेन्स हैं, एंड उसके साथ साथ ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स रहेंगी. ये फाइनली आर्च ऑफ एओर्टा तक जाएगा. उन वेसल्स के साथ साथ आर्च ऑफ एओर्टा तक एक्सटेंड करेगा और आर्च ऑफ एओर्टा पे अडेयर्ड हो जाएगा. सो दिस इज द अटैचमेंट ऑफ प्रीट्रेकियल layer of deep cervical fascia. Then we have prevertebral layer of the deep cervical fascia. Yes, this one, the whole this heart one. अब प्री वर्टिब्रल देखो, पूरा वर्टिब्री जो है उस वर्टिब्री को कैसे इनक्लोज किया हुआ है, दिस प्री वर्टिब्रल लेयर, एंड इज सुपीरियरली इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द स्कल. सुपीरियरली अगर बात करें सो बेस ऑफ द स्कल में अटैच्ड होगा, अडेयर्ड होगा, एंड इनफीरियरली इट विल एक्सटेंड टू अप टिल द सुपीरियर मीडियास्टाइनम. मीडियास्टाइनम पढ़ा होगा तो सुपीरियर इन्फीरियर पार्ट्स पढ़ोगे. सो इन्फीरियरली इट विल एक्सटेंड इनटू द सुपीरियर मीडियास्टाइनम वेयर इट विल अटैच्ड टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. एंड कहाँ से कहाँ तक?
to the body of the fourth thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae नंबर 4 वहाँ तक एक्सटेंड करके और वहाँ पे इंफीरियरली जाके अडेयर्ड होगा या अटैच्ड होगा. सो इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल लेयर एंड प्री वर्टिब्रल लेयर, ये तीनों लेयर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बहुत ही खास बात यह है कि ये ही तीनों लेयर्स जो हैं बार बार इनका जिक्र आएगा, बार बार डिस्कशन आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में. व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड देन यू विल गेट कंफ्यूज अगर ये याद नहीं रखेंगे आप. सो दीज 3 लेयर्स मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय यू ऑल, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज you must remember the fourth one, that is the carotid sheath. Carotid sheath is nothing but a condensation of this fibro areolar tissues or the cervical fascia around the main vessels of the neck. ये जो भी वेसल्स देख रहे हैं लेबल्ड है, मेन वेसल्स है नेक का. द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन द इंटरनल जुगुलर वेन एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होता है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में. सो यू कैन सी द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज लीविंग द कैरोटिड शीथ. कैरोटिड शीथ से बाहर निकल के है, बाहर निकल जाता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. दैट इज वाई कंटेंट्स, अगर कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स का बात करें then you have to only label or mention the internal jugular vein. This is a TS, so you have to label the internal jugular vein, you have to label the common carotid artery, and on the upper part you also have to mention the internal carotid artery. Then you have to mention one nerve, that is the 10th cranial nerve, the vagus. So this will be the content ऑफ द कैरोटिड शीथ. और ये जो कैरोटिड शीथ के कंटेंट के साथ साथ यू हैव टू डिफाइन द रिलेशन. अच्छा, कैसा लोकेशन देखो, लेटरली एंड मीडियली आप यहाँ पे इस फिगर में मेंशन्ड है ताकि आप डिफाइन कर सकें कैसा सिचुएशन है. सो इंटरनल जुगुलर वेन इज लेटरल, इंटरनल जुगुलर वेन इज लेटरली. कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज मीडियल इन द लोअर पार्ट, एंड इन द अपर पार्ट जो आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो देखो लोअर पार्ट में तो लेटर कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है दैट इज मीडियल, एंड इन द अपर पार्ट ये मीडियल जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जगह वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो जाएगा. ओके, सो लेटरली वी हैव द इंटरनल जुगुलर वेन, एंड मीडियली वी हैव द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इन लोअर पार्ट, एंड अपर पार्ट वी हैव द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. एंड लास्टली द वेगस नर्व इज इन बिटवीन द common carotid artery or the internal carotid artery and the internal jugular vein. So, and basically this vagus nerve will be in the posterior plane, towards the posterior side. So it will be in the posterior plane in between the internal jugular vein and the common carotid artery. And I'm talking about relations. So relations will be defined as anterior and posterior relations. Anterior to the carotid sheath we have the ansa cervicalis, which I have already discussed in the previous video lecture. This is ansa cervicalis. ये दो आपको दिख रहा है, अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक, तो ये ansa cervicalis. And posteriorly we have the sympathetic trunk. Posteriorly we have the sympathetic trunk, the cervical sympathetic trunk, which lies posterior to this common carotid sheath. Okay, sometimes short note comes in your examination about carotid sheath, then you have to define all these. The carotid sheath का definition लिखना होगा, उसमें contents लिखने होंगे और उसके साथ साथ ही relations define करने होंगे. Okay, then let's move on to the sternocleidomastoid, the most important muscle of the neck, the most important landmark. Why? Because this muscle will be the landmark to differentiate the anterior triangle and the posterior triangle. Posterior triangle of neck जो है वो टेक्स्ट बुक में आपको साइड ऑफ द नेक में मिलेगा. साइड ऑफ द नेक जो चैप्टर है उसमें पोस्टीरियर ट्रायंगल डिफाइंड है, एंड साइड ऑफ द नेक में ही ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है. सो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इज द लार्ज सुपरफिशियल मसल ऑफ द नेक, एंड विद दिस trapezius is also a large superficial muscle of the neck. So we will discuss about sternocleidomastoid only because sternocleidomastoid is important. So sternocleidomastoid का पहले origin का बात करते हैं. So sternocleidomastoid has basically two heads. So the one is the sternal head and the other is the clavicular head. The sternal head will arise or will originate from the superolateral part of the front side of the manubrium sterni. Superolateral part of the front
of manubrium sternae, origin of the sternal head of sternocleidomastoid, and this sternal head is basically or totally tendinous इन ओरिजिन. यहाँ जो है वो टेंडन से ओरिजिन हो रहा है, बेसिकली टेंडनस ओरिजिन का है ये स्टर्नल हेड, और ये ओरिजिनेट होगा सुपेरो लेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द और एंटीरियर सरफेस ऑफ द मेन्यूब्रिम स्टर्नाई. Talking about the clavicular head of sternocleidomastoid, this clavicular head of sternocleidomastoid is musculotendinous in nature, and it arises from the medial one third, okay, medial one third of this clavicle bone. So medial one third of the superior surface of the clavicle will or gives origin to the musculotendinous head of the sternocleidomastoid, that is the clavicular head of the sternocleidomastoid. So origin हमने डिस्कस कर लिया, दो ओरिजिन याद रखने हैं, स्टर्नल हेड का ओरिजिन और क्लेविकुलर हेड का ओरिजिन. देन द मसल फाइबर्स विल रन अपवर्ड्स, ओके, obliquely upwards रन कर रहा है, and it will inserted into the mastoid process, but it will inserted by a thick tendon. एक बड़ा सा देखो यहाँ whitish line दिख रहा है, so this is mastoid process, so it will be inserted by a thick tendon into the lateral surface of the mastoid process, as well as by a thin aponeurosis into the lateral half of the superior knuckle line. Occipital bone जब नॉर्मल हॉस्पिटैलिस पढ़ोगे तो उसमें नकल लाइंस के बारे में पढ़ोगे, एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस पढ़ोगे, देन वी हैव सुपीरियर नकल लाइन, इंफीरियर नकल लाइन. सो दिस यहाँ पे जो इंसर्शन है वो भी एक तो थिक टेंडन के थ्रू और इंसर्शन हो रहा है लेटरल सरफेस ऑफ द मैस्टॉइड प्रोसेस पे, और एक थिन एपोन्यूरोसिस फॉर्म हो रहा है जो कि लेटरल हाफ ऑफ द सुपीरियर नकल लाइन में जाके इंसर्ट हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड. एंड नर्व सप्लाई जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का होगा, इट विल बी सप्लाइड बाय द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व विच विल बी मोटर नर्व सप्लाई फॉर दिस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, and branches from the ventral rami of C2, cervical 2 nerve will also supply this sternocleidomastoid. and अगर ब्लड सप्लाई का बात करें तो रीजनल एक ब्रांच जो है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी से मिलेगा और एक सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी से ब्रांच मिलेगा. उसके साथ साथ ऑसिपिटल आर्टरी से भी दो ब्रांचेस मिल जाएंगे, एंड वेन जो है वो आर्टरीज को फॉलो करेंगे, यानी जो भी मैंने अभी ब्रांचेस बताए आर्टरीज के सप्लाई के लिए, वही उसी के सिमिलर जो वेन्स हैं वो ड्रेन करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड. अच्छा, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन भी बात कर लेते हैं. सो एक्शन का बात करें सो व्हेन यहाँ पे दो हेड्स पढ़े अपन ने, स्टर्नल हेड एंड क्लेविकुलर हेड. सो वन मसल कॉन्ट्रैक्ट इट विल टर्न द चिन टू अपोजिट साइड. मतलब कि जब एक साइड का एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, when one of these muscle will contract any side, मैं अभी तो दोनों की बात कर रहा हूँ कंबाइंडली, किसी भी एक साइड का लेफ्ट या राइट साइड का अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा दैट साइड पे, पहली बात तो इट विल हेल्प टू टर्न द चिन ऑन द ऑपोजिट साइड, एंड इट विल ऑल्सो टिल्ट द हेड टूवर्ड शोल्डर. सो मूविंग द चिन ऑन टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड एंड टिल्टिंग द हेड towards the shoulder will be done if the one muscle contracts, if one side of the muscle contracts, and if both the muscles of contracts, अगर दोनों muscles contract करते हैं, then it will draw the head forwards as in eating. और सर जैसे हम कहीं लेटे होते हैं when we are lying in lying position, तकिए पे सर के सो रहे हैं और सडन हम उठते हैं तो गर्दन जो हम लिफ्ट अप करते हैं अपने नेक को, तो वो लिफ्ट अप करने के लिए मदद जो मिलती है, या खाना खाने के लिए जो हम गर्दन आगे झुकाते हैं, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड व्हेन बोथ द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. सो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने ज़रूरी हैं, और फर्दर डिटेल्स में स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के नहीं जा रहे हैं बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अबाउट पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. अपना जो टॉपिक है आज का वो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. सो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज अ स्पेस in the side of the neck, a space on the side of the neck. Yes, this is a triangular space on the side of the neck which is situated behind the sternocleidomastoid. Anterior triangle हमने आगे define किया था. This is the anterior triangle of the neck. Yes, जो कि anterior जो sternocleidomastoid के anterior border जो है वो उसका posterior boundary form कर रहा था. अब यहाँ पे posterior border of the sternocleidomastoid muscle will form the anterior boundary of this and posterior triangle of the neck.
सो दिस पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, इसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर लेते हैं। हमने एंटीरियर ट्रायंगल में एपेक्स डाउनवर्ड्स पढ़ा था टूवर्ड्स स्टर्नम, यहाँ पे हम देख रहे हैं एपेक्स जो है वो अपवर्ड्स है टूवर्ड द ऑसिपिटल बोन। सो एपेक्स जो है वो अपवर्ड्स है, दैट विल लाई टूवर्ड्स the occipital bone and it lies on the superior knuckle line. So apex will be directed upwards towards the occipital bone and lies on the superior knuckle line, where along with this sternocleidomastoid trapezius muscle, ये देखो पीछे trapezius है, back of the neck में पढ़ेंगे important muscle trapezius. So this trapezius muscle also got insertion. So trapezius muscle और ये sternocleidomastoid दोनों इनके बीच में यहाँ पे ही जो है वो एपेक्स रेसाइड करेगा, एपेक्स पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक का, जो कि सुपीरियर नकल लाइन पे होगा। एंड बेस जो है वो इंफीरियरली है और वो मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, middle 1/3 of the clavicle will form the base of this posterior triangle of neck. The posterior border will be formed by the anterior border of this trapezius muscle. Posterior border of the posterior triangle of the neck will be formed by anterior border of the trapezius muscle. Yes, मैं अपना कर्सर वही मूव कर रहा हूँ. This is the posterior border of the posterior triangle of the neck, which is formed by the anterior border of this trapezius muscle of the back of neck. And the anterior border of the posterior triangle of neck will be formed by the posterior border of the sternocleidomastoid muscle. Okay, so boundaries define कर लिया. Anteriorly we have the posterior border of the sternocleidomastoid, posteriorly we have the anterior border of the trapezius muscle. Base will be formed by the middle 1/3 of the clavicle bone, and apex will be directed upwards towards the occipital bone on the superior knuckle line. So this is all about boundary of posterior triangle of neck. Now talking about roof, तो अब रूफ मैंने डिस्कस किया डीप सर्वाइकल फेशिया के वक्त में कि रूफ विल बी फॉर्म्ड बाय मेनली फॉर्म्ड बाय इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. रूल वही है, सबसे पहले रूफ विल बी फॉर्म बाय द स्किन, then after skin the superficial fascia, then the superficial fascia we have basically after superficial fascia and after platysma, deep to the platysma lies the investing layer of this deep cervical fascia, which also forms the roof of the posterior triangle of the neck. And superficial fascia में भी मैंने बात कर ली कि superficial fascia जो है वो प्लेटाइज्मा को entirely enclose करेगा. प्लेटाइज्मा के साथ साथ एक्सटर्नल जुगुलर, पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन रहेगा. उसके साथ साथ कुछ नर्व जैसे ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स भी रहेंगे. उसके साथ साथ देखो ग्रेटर ऑडिकुलर नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व्स, ये नर्व्स, ये सारा जो भी है ये रूफ में ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये नर्व्स हैं. एंड साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन का मैंने बात किया, एक्सटर्नल जुगुलर वेन यहाँ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो बहुत ही सुपरफिशियल फेशिया में मिल जाता है और इतना सुपरफिशियल रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी यूजफुल क्लिनिकली टू एग्जामिन और टू एसेस द वेनस प्रेशर, बिकॉज जब एक्सटर्नल जुगुलर वेन के बारे में पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो दैट एक्सटर्नल जुगुलर वेन विल हैव नो वॉल्व्स इन इट्स एंटायर कोर्स. पूरे कोर्स में कोई भी वॉल्व नहीं है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में. दैट इज वाई इट इज द बेस्ट वेन और इट इज द what we can say कि it is an ideal vein to examine or to assess the venous pulse pressure or venous pressure sorry. So venous pressure examine करने के लिए जो vein है that is external jugular vein, और best है कि side of the neck में posterior triangle में इसको examine किया जाए. Okay, so this is all about roof of posterior triangle of neck. Then we will discuss floor. So floor will be formed, floor of the posterior triangle of neck will be formed by the prevertebral layer of the deep cervical fascia. Prevertebral layer में हमने बात किया था, वो यहाँ पे लेबल्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मसल्स दिखाई गई हैं. जो मसल्स हैं वो फ्लोर क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं. सो फ्लोर फर्स्टली विल बी फॉर्म बाय द प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया. और ये जो प्रीवर्टिब्रल लेयर है वो कौन कौन सी मसल्स को कवर करके रख रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सेमी स्पाइनालिस कैपिटस. ओके, द सेमी स्पाइनालिस कैपिटस और स्प्लेनियस कैपिटस also called as splenius. Then we have the splenius capitis or we have the levator scapulae और क्या है scalenius medius. So all these muscles will be covered by this this prevertebral layer of the deep cervical fascia. So कौन सी muscles हैं? Semispinalis capitis, splenius capitis, then we have the levator scapulae
एंड स्कैलिनस मीडियस। तो ये सारी मसल्स जो हैं वो डीप सर्वाइकल फेशिया के प्री वर्टिब्रल लेयर से कवर्ड हैं, और ये ही मसल्स फॉर्म कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ओके फाइन, देन वी वी विल डिस्कस अबाउट सब डिविजन्स। सो सब डिविजन्स, जैसा इंटीरियर ट्रायंगल में हमने 4 सब डिविजन्स डिफाइन किए थे, पोस्टीरियर ट्रायंगल में 2 सब डिविजन्स यहाँ फिगर में बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। ओमोहॉयोइड मसल हमने डिस्कस किया था, इंफ्राहॉयोइड मसल में ओमोहॉयोइड मसल 4 मसल्स थे जिसमें एक ओमोहॉयोइड था जिसकी 2 बेलीज थी, सुपीरियर बेली एंड इंफीरियर बेली। सो दिस इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयोइड मसल will subdivide this posterior triangle of neck into 2 triangles, 2 subdivisions or 2 subtriangles. The first or the upper one is the larger triangle, which is called as occipital triangle towards the occiput, and the lower one is the smaller triangle, which will be called as subclavian triangle or supraclavicular triangle above the clavicle. So supraclavicular triangle or subclavian triangle, the smaller triangle which is below the inferior belly of omohyoid, and above the inferior belly of omohyoid is a larger triangle subdivision of posterior triangle of neck, that is the occipital triangle. These are the 2 subdivisions of posterior triangle of neck. Now moving on to the contents of posterior triangle of neck. So contents will be discussed under 3 heads: the nerves, the vessels and the lymph nodes. आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि कुछ lymph nodes हैं, नर्व्स हैं और कुछ वेसल्स हैं। तो यही नर्व्स, वेसल्स और लिम्फ नोड्स जो हैं वो इसी हेड्स में हम डिफाइन करेंगे कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में। फर्स्टली वी विल गो विद द नर्व्स। तो नर्व्स में अगर बात करें कि कौन कौन सी नर्व्स हैं जो कि रहेंगी, सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात कर लेते हैं ऑसिपिटल ट्रायंगल का। तो ऑसिपिटल ट्रायंगल में देखो नर्व्स का बात करें, ऑसिपिटल ट्रायंगल बड़ा वाला, और दिस इज द, ये इंफीरियर बेली दिख गया ओमोहॉयोइड का। सो दिस इज द ऑसिपिटल ट्रायंगल एंड दिस इज द सबक्लेवियन ट्रायंगल। सो सबक्लेवियन ट्रायंगल में अलग डिस्कस कर लेते हैं एंड ऑसिपिटल ट्रायंगल में अलग डिस्कस करते हैं। ऑसिपिटल ट्रायंगल में जो नर्व्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज वी विल हैव द सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स, ओके, the supraclavicular nerves C2, C3, C4. Then we will have the transverse cervical nerve, we will have the great auricular nerve and the lesser occipital nerve. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, रूफ में भी पढ़ा था, सुपरफिशियल फेशिया में थे ये, और उसके साथ साथ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. सो दीज आर द नर्व्स that will be in content of the occipital triangle of posterior triangle of neck. And along with these nerves, अगर हम वेसल्स का बात करें तो वेसल्स में वी हैव द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ लेबल्ड नहीं है. देयर इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, यहीं पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल नहीं, तो इधर देयर इज वन ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी. एंड along with that transverse cervical artery we will have the transverse cervical vein also, and we have the occipital artery. Yes, the occipital artery. So vessels में सिर्फ यही रहेंगे, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेसल्स यानी आर्टरी एंड वेन बोथ, एंड द ऑसिपिटल आर्टरी. एंड लास्टली लिम्फ नोड्स की अगर बात करें तो अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, अलॉन्ग दिस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, बेसिकली मोर इन द लोअर पार्ट वी विल हैव फ्लू सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स एज वेल एज द ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स. तो कुछ यहाँ पे ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स मिलेंगे और कुछ यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे कंटेंट्स में ऑसिपिटल ट्रायंगल के. नाउ वी विल डिफाइन कंटेंट्स ऑफ द सबक्लेवियन ट्रायंगल. सो सबक्लेवियन ट्रायंगल में नर्व्स का अगर बात करें तो वी हैव द अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, the 3 trunk of brachial plexus, the upper, lower and middle trunk of brachial plexus. Then we also have one nerve to serratus anterior, which is not labeled here, the nerve to serratus anterior, nerve to subclavius and suprascapular nerve. So all these nerve, ये जो यहाँ पे सिर्फ आपको देखो 3 ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक ही फिगर में दिख रहे हैं. उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, सुप्राक्लेविकुलर नर्व मेंशन कर, सुप्रास्कैपुलर नर्व मेंशन करना जरूरी है, हैविंग रूट वैल्यू C566. देन वी हैव द नर्व टू सबक्लेवियस, दैट विल आल्सो हैव द रूट वैल्यू ऑफ C566, एंड द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर हैविंग रूट वैल्यू C5, C6 and C7. So these are the nerves that will be forming the contents of this subclavian triangle of posterior triangle of neck. Then talking about vessels, we have the subclavian artery, and also the subclavian vein. So basically third part of the subclavian artery
जब सबक्लेवियन आर्टरी और वेन पढ़ोगे तो उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है सबक्लेवियन आर्टरी. सो द थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन will be in the content of the subclavian triangle. And apart from this we also have the suprascapular artery जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. एंड अगर लिम्फ नोड्स का बात करें यहाँ पे, तो लिम्फ नोड्स में देर आर फ्यू सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स अलोंग द upper superior border of the clavicle. There are some supraclavicular lymph nodes. So these will be the contents of posterior triangle of neck. Now last but not the least, we will discuss about 2-3 important clinicals that will be frequently asked in question while asking questions about posterior triangle of neck. तो ये 2-3 clinical ज़रूर पूछे जाते हैं. The first one is the Virchow's node. So Virchow's node is the nothing but the left supraclavicular lymph nodes. अभी supraclavicular lymph nodes पढ़ा हमने subclavian triangle में content पे. So जो left side का the left supraclavicular lymph nodes, they are also called as the Virchow's node. black arrow से जो दिख रहा है यहाँ पे देखो काफ़ी enlarged. So this is the left supraclavicular lymph nodes, which are also called as Virchow's node or the Scalini node, and these are involved in many these lymph nodes will be enlarged or swelled up in many malignant conditions, many cancers such as cancers of distant organs, दूर के organs का कैंसर और मेलिग्नेंसी में ये बेसिकली लिम्फ नोड्स जो हैं वो enlarge हो जाते हैं, इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नल नोड्स. एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट विसराज हैं जैसे कि टेस्टिस में अगर कार्सिनोमा ऑफ टेस्टिस, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक एंड अदर सम एब्डोमिनल ऑर्गन्स अगर उसमें कार्सिनोमा होता है, तो इन दैट केस, इन दोज केसेस देयर विल बी enlargement of this left supraclavicular lymph node or Virchow's node. That is why it is also known as signals node. और इस swelling का अगर एस्पायरेशन करते हैं, इसके बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल क्लिनिकली टू डायग्नोज the malignancies in very early stage, so that intervention will be done in time and life of the patient can be saved, or the life expectancy can be increased in case of carcinoma or malignancies. So ये Virchow's node clinically बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए Virchow's node ज़रूर ध्यान रखिएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम Virchow's node, नेक में कॉमनली जो है वो आप देखोगे supraclavicular lymph nodes जो है वो कॉमनली स्वेल्ड अप हो जाते हैं. एंड apart from the cancers, there are also certain conditions like cystic hygroma, lipoma, lymphangioma, and in case of also cervical rib, there may be swelling observed or found in the neck. तो नेक में स्वेलिंग के कई कारण हो सकते हैं. जो लिम्फ नोड्स हैं वो सेल्ड अप हो सकते हैं, उसमें लेफ्ट साइड में Virchow's नोड के बारे में डिस्कस कर लिया. उसके अलावा लाइपोमा, सिस्टिक हाइग्रोमा एंड लिम्फेंजियोमा एंड सर्वाइकल रिब, कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें भी नेक में स्वेलिंग देखने को मिल सकता है. देन वी हैव टॉर्टिकोलिस और is also called as wry neck, WRYNECK, wry neck, and it is a deformity. देखो यहाँ पे दिख रहा है, this is normal position of the neck and head, and in torticollis, this due to this deformity in which one side of the head is bent to one side or towards one shoulder. Head देखो यहाँ पे कैसे सब्जेक्ट का बेंड है towards left side. So it is a deformity, it is a structural deformity which causes head to bend on one side and chin to points on the other. एक तरफ head bend होगा, दूसरी तरफ chin opposite side में point करेगा. And this basically this deformity is a result of spasm or contracture. जो हमने अभी पढ़ा था ना कि मसल्स जो हैं स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड मसल के बारे में पढ़ा है, ट्रेपीजियस का भी थोड़ा सा रोल रहता है. तो स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड मसल एंड ट्रेपीजियस मसल जो है वो नेक के मूवमेंट में बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों मसल्स. एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चर, ड्यू टू स्पाज्म इन दीज मसल्स, और ये जो कारण होगा स्पाज्म का, तो वो स्पाज्म जो है वो नर्वस कंट्रोल मतलब नर्वस ओरिजिन का भी हो सकता है. स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है वो सप्लाई देती है
मैंने अभी बताया आपको, तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो सप्लाई दे रही है, तो उसकी वजह से वहाँ कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट सॉरी स्पाज्म आ सकता है ड्यू टू द नर्वस ओरिजिन, और उस स्पाज्म की वजह से एक तरफ वन साइड हेड जो है वो बेंड हो जाएगा और चिन अदर साइड रहेगा। एंड इसके अलावा ये तो एक कॉमन कंडीशन है, ये कभी कभी कुछ बच्चों में कंजेनाइटल भी रहता है, कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस, दैट विल बी ड्यू टू बर्थ इंजरीज। बर्थ इंजरी मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी अगर इंजरी हो गया तो उस कंडीशन में टॉर्टिकोलिस अगर बच्चे में मिल रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस। देन इन सर्टेन इरिटेशन, नर्वस इरिटेशन, वी विल डिफाइन दिस टॉर्टिकोलिस एज spasmodic torticollis. In sometimes in cold or drought also you can observe torticollis, that will be termed as rheumatic torticollis when a subject will be in exposure to cold air or cold drought. And torticollis occurs, then it will be termed as rheumatic torticollis. And one more important torticollis, that will be the reflex torticollis, that will be due to the enlarged सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं, जो कि वहाँ पे जब इनलार्जमेंट हो रहा है तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स को अगर इरिटेट करेंगे, यानी स्पाइन बेसिकली तो नर्व की वजह से स्पाज्म आ रहा है, बट द कॉज ऑफ दैट नर्वस इरिटेशन विल बी द enlarged lymph nodes, enlarged cervical lymph nodes, so that will be termed as reflex torticollis. So this is torticollis, that is a congenital defect, a defect also in अगर बच्चों में लगा तो congenital defect भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, but if you are defining it in adults, then you have to write the torticollis is a deformity in which the head is bent to one side and the chin points to the other side. Okay. And last but not the least is dysphagia lusoria. Dysphagia lusoria is nothing but a structural deformity causing compression or causing compression of the esophagus and causing dysphagia. So dysphagia cause होगा जब this is esophagus, this is trachea and behind trachea is esophagus. So esophagus में कभी कभी compression होता है, और ये क्यों होता है? Generally we have the left subclavian artery, आर्च ऑफ एओर्टा में 3 ब्रांचेस पड़ते हैं, द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी विल फर्दर गिव ब्रांच to the right common carotid artery and the right subclavian artery. But in certain conditions, this common brachiocephalic artery continues as right common carotid artery and will not divide, and there is an aberrant right subclavian artery. Yes, you can see in the figure next to the लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी अराइजिंग अबनॉर्मल और एबरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी दिख रहा है, और ये पीछे से देखो कोर्स कैसे रन करते हुए वापस जा रहा है, वो वापस तो राइट साइड से ही वो कोर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन जो है वो देखो आर्च ऑफ एओर्टा से हो गया है. दैट इज वाई इन दिस केस, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइट सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ डिवाइडेड है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से, बट देर इज एन अबनॉर्मल, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन अबनॉर्मल subclavian artery from the arch of aorta, which will run upwards behind the esophagus and will cause compression, and due to this compression the symptom dysphagia will occur, which will be termed as dysphagia lusoria. So ये इसके अलावा भी कुछ क्लिनिकल्स हैं, जब हम अलग अलग वो जब आर्टरीज़ को आप पढ़ोगे तो उन आर्टरीज़ में वो क्लिनिकल्स पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा. डिस्फेजिया लुसोरिया इसलिए डिफाइन कर दिया बिकॉज डिस्फेजिया लुसोरिया कई बार पूछ लिया जाता है इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. सो डिस्फेजिया लुसोरिया के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, बट बहुत सारे और भी क्लिनिकल्स होते हैं इन केस ऑफ आर्टरीज ऑफ नेक, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड व्हेन वी विल स्टडी अबाउट दोज आर्टरीज. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. Till then, in next video lecture, we will discuss about, I think we have to start with the parotid region, and we will discuss about parotid gland. So till then, stay home, stay healthy, take care. Thank you so much.